Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this video lecture, we are going to discuss exercise 10.1, question number 5, question 7, 8, part number 3 and 4 of question number 8 only, question number 11 and question number 12. These questions are included in the accelerated course. In previous video lectures, we discussed trigonometric identities for the sum and difference of angles, and after that in next video we discussed allied angle and trigonometric ratios of allied angles. Those two concepts will be used in these questions to solve the question of exercise 10.1, that are question 5, 7, 8, 11 and 12. You know, trigonometric ratios of sum and difference of angle are sin alpha plus beta. Here you see that the angle is alpha plus beta, so this is sum of the angle. Another one is sin alpha minus beta, so this is the trigonometric identity of difference of angle. In that fashion we know cos alpha minus beta, so this is a trigonometric identity of difference of angle, which is actually a fundamental law of trigonometry. Fourth one is tangent cos or cosine alpha plus beta. Similarly, fifth one is tangent alpha plus beta, and sixth is tangent alpha minus beta. So these are the 6 trigonometric identities of sum and difference of angle. Sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus sin beta cos alpha, and we deduce this identity from number 3, that is fundamental law of trigonometry. Similarly, sin alpha minus beta is equal to sin alpha cos beta minus sin beta cos alpha. Cos alpha minus beta, which is trigonometric identity of the difference of angles alpha minus beta, आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस है, एंड डेट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हमने प्रूफ किया हुआ था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर. सो डेट इज cos अल्फा cos बीटा. ये याद रख ले, अगर यहाँ cos है और यहाँ आपके पास माइनस तो यहाँ प्लस होता है, साइन अल्फा साइन बीटा. और ये तमाम ये जो चे के चे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस आइडेंटिटी नंबर 3 से हमने डिराइव किए थे. सिमिलरली कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा. टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा. And similarly tangent alpha minus beta is equal to tangent alpha minus tangent beta. अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आपके पास होगा. तो ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ था. इसके साथ साथ आपके पास अगर थीटा, ये दीज आर दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ एंगल्स. ये हमने एक वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. फिर हमने कल की वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे अलाइड एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल. अगर थीटा आपके पास एक बेसिक एंगल है, बेसिक स्टैंडर्ड एंगल है, अब आपके पास ये जो सारे एंगल्स हैं पाई बाई 2 दैट इज़ 90 डिग्री, प्लस माइनस थीटा पाई प्लस माइनस थीटा 3 पाई divided by 2 plus minus theta, that is pi 180 degree, that 3 pi by 2 270 degree, and 2 pi plus minus theta. If theta is the basic angle, then if you subtract the basic angle from 90 or the multiples of 90, or if you add the basic angle with 90, that is right angle, or to the multiples of the right angle, so all these angles are called एलाइड एंगल्स. तो ये हमने एलाइड एंगल्स को डिस्कस किया था. और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप किसी एलाइड एंगल का आप ले रहे हो और वहां पे π/2 या 3π/2 इन्वॉल्व हो, π/2 या 3π/2 आपके पास इन्वॉल्व हो, मीन 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो उस केस में साइन काज में चेंज होगा, आपका जो टेंजेंट है वो कोटेंजेंट में चेंज होगा, आपका जो अगर कास है तो वो साइन में चेंज होगा, कोटेंजेंट है तो वो टेंजेंट में चेंज होगा, सीकेंट को सीकेंट में और कोसीकेंट सीकेंट में चेंज होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है फॉर रिमेंबरिंग दी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ अलाइड एंगल्स। और अगर आपके पास फार्मूले के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल में फाई या 2π हो तो उस केस में आपका फंक्शन अगर साइन है तो वो साइन रहेगा, टेंजेंट है तो टेंजेंट रहेगा, कास है तो कास रहेगा, मीन फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर के अंदर। सो दैट इज द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स। These all materials will be used in exercise 10.1। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिवाइज किया है। इसके साथ साथ आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन आपका पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा बिकॉज यहाँ पे y पॉजिटिव x नेगेटिव होता है। यहाँ पे टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x y दोनों नेगेटिव, तो टेंजेंट असल में साइन बाय कास के बराबर होता है, तो माइनस माइनस कट होके आपको टेंजेंट पॉजिटिव मिलता है। और इसके साथ साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोसाइन जिसको हम कास कहते हैं वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 होता है, तो दैट्स वाई। अब यहाँ पे आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, साइन उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज जिसको हम कोसाइन कहते हैं और उसका रेसिप्रोकल जिसको हम सीकेंट कहते हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल, कोई भी measure of the angle you gave to any trigonometric ratio, तो वो trigonometric ratio 0 और 90 डिग्री के बीच में एंगल के ऊपर ऑपरेट होके जो वैल्यू आपको रेंज में मिलेगी that must be a positive value। सही है। अगर यहाँ पे साइन को आप 90 और 180 के बीच में कोई भी एंगल ले दें तो साइन उस पर ऑपरेट होके आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे कास को आप 90 और 180 के बीच में कोई एंगल दे दें सो वो उस पर ऑपरेट होके वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट दी काज इज नेगेटिव। तो यहाँ पे एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट से है तो काज वहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर आपके पास एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट से हो और उस पर आपने टेंजेंट फाइंड करना हो तो वहाँ टेंजेंट आपको नेगेटिव मिलेगा। सही है, रिजल्ट टेंजेंट का नेगेटिव मिलेगा। सो दीज पॉइंट्स आर डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। दीज ऑल पॉइंट्स विल बी यूज टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें, मैंने चीज़ों को रिवाइज किया हुआ है। These are the trigonometric identities of sum and difference of angle। आप लोग के साथ अभी डिस्कस भी किया ये 6। इसके साथ साथ इन एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चंस की सोल्यूशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे a² - b² दैट इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। यू नो दैट इज़ अ वेरी बेसिक फार्मूला इन अलजेब्रा। And these are two very famous identities that you know from the previous classes, that secant square theta is equal to 1 plus tangent square theta and sin square theta plus cos square theta equal to 1। और इनका प्रूफ भी आप if you consider a unit circle with radius 1 and origin at the center, आपके पास origin सेंटर पे और रेडियस आपका 1 यूनिट सर्कल हो और उसकी सरकम्पेरेंस के ऊपर अगर आप एक पॉइंट ले लें एंड इफ यू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल हेयर एंड यूज पाइथागोरस थ्योरम तो वहाँ से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के बराबर होगा क्योंकि सरकम्पेरेंस के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई तो वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एक्स असल में आपके पास कॉस थीटा होता है और वाई साइन थीटा होता है। इफ़ वी कंसिडर थीटा इज अ बेसिक एंगल, बेसिक स्टैंडर्ड एंगल, तो ये आप वहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। इनको हम यूज़ करेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये साइन थीटा होल स्क्वायर के बराबर होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास कॉस थीटा होल स्क्वायर के बराबर होता है, या टेंजेंट स्क्वायर थीटा मीन
टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर होता है। और ये बात आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की डिटेल में कि आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इफ यू गिव एंगल फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन 0 to 90 डिग्री में से कोई भी एंगल आप दे दें, सो आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन रेंज आर इन रिजल्ट गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ पे साइन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल 90 180 के बीच में होते हैं, थर्ड के 180 और 270 के बीच में, और फोर्थ में 270 और 360 के बीच में होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ASTC से आप इसको याद रख सकते हैं। तो दीज पॉइंट्स विल बी यूज्ड टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आप एक्सरसाइज 10.1, ओके। नाउ वी आर मूविंग towards the question number 5. That is a very important question. In question number 5, you see that you need to find out tangent. Tangent alpha is given, that is 3/4, and secant beta is 13/5, and neither the terminal side of the angle of a measure alpha r nor beta is in the first quadrant. आप सबको मैंने एक्सप्लेन करवाया था कि एंगल के दो साइड्स होते हैं, एक इनिशियल साइड होता है, एक टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड हम स्टैंडर्ड एंगल का एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और टर्मिनल साइड आपके पास, अगर लेट से ये देख ले, ये आपके पास इनिशियल साइड है एक एंगल का। अब अगर टर्मिनल साइड इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा इज द एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपके पास इनिशियल साइड हम हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज कंसिडर स्टैंडर्ड एंगल्स, तो ये आप देख लें कि ये इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब टर्मिनल साइड अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये देखिए टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, लेट्स से दैट एंगल इज अल्फा, तो ये आपके पास अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं होगा, दैट मस्ट बी एंगल इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट अल्फा आपको गिवन है और सीकेंट बीटा आपको गिवन है, तो ये अल्फा और बीटा के जो टर्मिनल साइड्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा आर नॉट द एंगल्स ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन वी नीड टू कैलकुलेट the values of sin alpha plus beta, cos alpha plus beta, and tangent alpha plus beta. So you all know that sin alpha plus beta is actually equal to, according to the trigonometric identity of sum and difference of angles. तो ये आपके पास होगा sin alpha cos beta plus sin beta cos alpha, and similarly cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा है, इसको हम साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। आई एम नॉट टेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, बिकॉज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 द वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को जस्ट हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमने अगर साइन अल्फा प्लस बीटा या काज अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करना है, सो आई नीड साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा काज अल्फा, ये वैल्यूज मुझे चाहिए। मुझे यहाँ पे अननोन क्या है, यहाँ अननोन जो आपके पास है, आपको साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, आपको काज अल्फा की वैल्यू चाहिए, साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, और कॉस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ चाहिए। तो इन तमाम वैल्यूज को फाइंड करके आप यहाँ पे इनको यहाँ पुट करके यू गेट साइन अल्फा प्लस बीटा काज अल्फा प्लस बीटा, इन सबको आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, उसको मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ आप देख लें दैट यू नो ये साइन अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है फ्रॉम दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। यहाँ पे ये आपके पास गिवन है, टेंजेंट अल्फा ये इसके बराबर हैं और सीकेंट बीटा इसके बराबर हैं, और ये अल्फा बीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल नहीं है। तो ये यहाँ पे मैं इन चीज़ों को अब यूटिलाइज करूँगा। ओके, यहाँ आप देख ले, अब यहाँ से आप देख सकते हैं आई एम यूजिंग दिस फेमस trigonometric identity that you know from the previous classes,
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। आपके जहन में होना चाहिए कि वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट साइन अल्फा काज अल्फा साइन बीटा काज बीटा, क्योंकि आपके पास जब ये साइन अल्फा प्लस बीटा को आप एक्सपैंड फॉर्म में लिखते हो, सो इट कंटेन्स साइन अल्फा काज बीटा एंड काज अल्फा साइन बीटा। तो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इनको आपने यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे आपके पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो इस आइडेंटिटी के अंदर जहाँ पे टेंजेंट अल्फा है वहाँ पे 3/4 पुट कर लें। एंड आई डिस्कस विद यू दैट टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज एक्चुअली टेंजेंट अल्फा होल स्क्वायर। सो ये आपके पास 1 + 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ से सीकेंट स्क्वायर अल्फा आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 16। दिस सीकेंट स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज सीकेंट अल्फा होल स्क्वायर एंड दैट 25/16 5/4 whole square. Now taking square root on both side, so you already know when you are taking square root on both side, तो वहाँ से हम उसके साथ हम प्लस माइनस ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि दैट इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर मीन 2 और रूट आपके पास सोल्यूशन को कहते हैं। तो यहाँ से आपको दो सोल्यूशंस मिलेंगे, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको दो सोल्यूशंस मिलते हैं क्योंकि वहाँ डिग्री आपके पास 2 होती है। सो यहाँ पे भी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वी हैव नीड टू टेक स्क्वायर रूट, तो यहाँ इसके साथ आएगा प्लस माइनस। तो आप देख ले आपके पास आ गया प्लस माइनस। नाउ दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ अगर आप देख लें तो मुझे तो कॉज अल्फा चाहिए, लेकिन मुझे मिला सीकेंट अल्फा प्लस माइनस 5/4। तो अब देखें सीकेंट अल्फा को मैं 1/cos अल्फा लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, या इसको आप लिख ले cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो ये cos अल्फा की वैल्यू आई है, मतलब यहां से आप लिख सकते हैं कि cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 बिकॉज यू नो cos एंड सीकेंट आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे मैं cos अल्फा को पॉजिटिव लूंगा या cos अल्फा को नेगेटिव लूंगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ आई कैन डिसाइड cos अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने अब यहाँ पे अल्फा को देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि आप सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में आपके पास कोसाइन जिसको हम कास कहते हैं और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अब हमने अल्फा को डिसाइड करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर अल्फा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा लेट से, तो आपने cos अल्फा को फिर प्लस 4/5 लेना है। और अगर आपके पास ओके सॉरी लाइट चली गई, ओके नाउ 1 minute प्लीज। ओके तो अब आप देख लें, अगर यहाँ पे आपके पास लेट्स से cos इज पॉजिटिव, तो वो कब पॉजिटिव होगा? अगर आपका ये अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है कि अल्फा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। ये जो आपका अल्फा है दैट मस्ट बी नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपका अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं हो सकता। देखिए cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे या नेगेटिव रिजल्ट लेंगे, तो ये हम यहाँ अल्फा को डिसाइड करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4। तो ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब इसको देख ले, अगर टेंजेंट अल्फा आपके पास है 3/4, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आपका जो ओके अगर टेंजेंट अल्फा 3/4 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? टेंजेंट इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो दैट्स व्हाई अल्फा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अगर अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कास क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कास नेगेटिव होता है। सो यहाँ से हम
काज अल्फा की वैल्यू -4/5 या सीकेंट अल्फा को -π/4 लेंगे, क्योंकि सीकेंट भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो यहाँ ये अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि टेंजेंट अल्फा आपको 3/4 के बराबर है। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। हाउ यू कैन डिसाइड that secant alpha will be plus by 5/4 or minus π/4, or you can take the reciprocal cos alpha. So how you can decide that secant cos alpha will be plus 4/5 या minus 4/5? So you need to decide it from the alpha, that if alpha lies in the first, then you will take positive. If alpha lies in second, you will take negative. If alpha lies in third, you will get take negative. If alpha lies in fourth, you will take positive, because in fourth quadrant alpha is positive. तो इसमें से आप यहाँ इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4, सो दैट्स वाई अल्फा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे सीकेंट ये आप देख सकते हैं कि दैट इज मस्ट बी -π/4. Since alpha is not in the first quadrant, therefore secant alpha will be -π/4 because alpha in the third quadrant. और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आपके पास ये है कि टेंजेंट अल्फा आपके पास 3/4 मीन टेंजेंट अल्फा पॉजिटिव है। तो टेंजेंट किन एंगल्स के ऊपर पॉजिटिव होगा? जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो। सो दैट्स वाई अल्फा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट और कॉस नेगेटिव होता है। सो दैट इज सीकेंट। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं वी कंसिडर कॉस। यहाँ पे हमने ये तो काज अल्फा आपको मिल गया। साइन अल्फा को फाइंड करने के लिए वी कंसिडर दिस आइडेंटिटी, दिस साइन स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज साइन अल्फा होल स्क्वायर। इस काज स्क्वायर अल्फा को साइड पे शिफ्ट कर लें, इसको काज अल्फा होल स्क्वायर में भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे काज अल्फा की वैल्यू -4/5 हमने कैलकुलेट की है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। वो यहाँ पे आप पुट कर ले इसको। तो इसको पुट करने से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25। तो यहाँ से साइन अल्फा प्लस माइनस 3/5। लेकिन आपको पता है कि अब यहाँ देखिए प्लस लेंगे या माइनस। सो आसान तरीका क्या है? टेंजेंट अल्फा क्वेश्चन के अंदर में आपको मिला है पॉजिटिव। तो अब देखिए आपका टेंजेंट पॉजिटिव है अल्फा के ऊपर, तो अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है। सो सिंस अल्फा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो अल्फा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो दैट्स वाई वी कंसिडर साइन अल्फा -3/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास इसी तरह। अब देखिए वहाँ पे तो हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें कॉस बीटा और साइन बीटा की भी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए सीकन बीटा जो हमारे पास गिवन है उसको हम लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सीकन बीटा ये पॉजिटिव है, मीन कास जो π/13 के बराबर होगा ये आपके पास पॉजिटिव है। सो काज आपके पास किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है काज। लेकिन ये बीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन द टर्मिनल साइड ऑफ अल्फा एंड बीटा आर नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दैट्स वाई बीटा मस्ट बी द एंगल ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे बीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। कास बीटा तो मालूम हो गया। साइन बीटा के लिए ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे साइन बीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस कास बीटा होल स्क्वायर। कास बीटा की जगह पे 5/13 पुट कर लें, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा साइन बीटा की वैल्यू दैट इज प्लस माइनस 12/13। नाउ बीटा इज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि आपका जो सीकंड बीटा गिवन है वो आपको पॉजिटिव गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और बीटा जो आपके पास है उसका टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो सीकंड तो या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फोर्थ में पॉजिटिव होता है। सो इट मीन्स दैट बीटा इज द एंगल ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? वो नेगेटिव होता है। सो दैट्स वाई साइन बीटा इज -12/13। तो अब देखिए साइन बीटा कास बीटा साइन अल्फा कास अल्फा हमने फाइंड कर लिए, और इसको यहाँ इस आइडेंटिटी के अंदर जस्ट आप रिप्लेस कर लें। यहाँ पे जस्ट आप रिप्लेस कर लें तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली आपको अब क्या चाहिए? यू नीड टू फाइंड आउट पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 2 के लिए आपका पार्ट नंबर 2, सो पार्ट नंबर 2 इज वेरी सिंपल। इन पार्ट नंबर 2 you need to find out the
Okay, now this is part number 2. Cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है, यू नो दैट फ्रॉम दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा ये सारे वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे पुट करके आपको ये मिलेगा। अब देखें sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करने के लिए ये रिजल्ट यूज़ कर लेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। सो दैट्स वाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस बीटा। तो इसको आप यहाँ इसी तरह प्लग कर सकते हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एक आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपने ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, तो इसका राइट हैंड साइड ले लें, कोटेंजेंट को जस्ट आप cos बाय sin लिख लें और फिर आप इसमें LCM ले लें, तो ये आपका sin अल्फा sin बीटा sin अल्फा sin बीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको ये मिलेगा। तो आप सबको पता है कि cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा इज एक्चुअली cos अल्फा प्लस बीटा, और ये आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर है दैट इज sin अल्फा प्लस बीटा। सो दैट इज द रिक्वायर्ड right hand side left hand side of the part number 2 of question number 7. Okay, now part number 2 of the question number 7 is you need to prove this identity. left hand side आप ले लें, sin अल्फा प्लस बीटा को आप एक्सपैंड कर लें, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, और इसी तरह cos अल्फा cos बीटा अपनी जगह पे। ये जो डिनोमिनेटर है इनको दोनों टर्म्स के बीच नीचे अलग अलग लिख लें, इनको आप कैलकुलेट करके आपको अपना रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड मिल जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पार्ट नंबर 3, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करने के बाद आपने क्या करना है, यू नीड टू देखिए ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है। सो 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा, बिकॉज कोटेंजेंट एंड टेंजेंट आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सो ये जो डिनोमिनेटर में 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है, इसकी जगह पे आप टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा आप लिख सकते हैं। आप देखें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल से इनको एक्सपेंड फॉर्म फार्मूला यूज़ कर लें। यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज़ करके यू कैन गेट द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। एंड सिमिलरली पार्ट नंबर 4 में आप क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे भी आपका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लें, टेंजेंट को आप साइन बाई काज लिख लें, एलसीएम ले लें, तो आपका जो नोमिनेटर होगा वो कॉस थीटा काज अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा होगा, ये सॉरी दैट इज अल्फा दैट इज साइन अल्फा। तो ये काज थीटा प्लस पाई के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, और नीचे आपको ये मिल जाएगा फ्रॉम दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 that is included in accelerated course. Question number 11 जो है और question number 12, these are similar to example 1 and example 3 that we discussed in previous video lecture. लेकिन यहाँ पे आपके पास कोटेंजेंट, ये देखिए सिमिलर रिजल्ट हमने पढ़ा था, टेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस टेंजेंट गेमा बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गेमा बाय 2, लेकिन यहाँ टेंजेंट की जगह पे जस्ट कोटेंजेंट है। तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको जस्ट टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गेमा बाय 2 को क्या लेना होगा, रेसिप्रोकल इनके, मीन 1 बाय कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 को टेंजेंट अल्फा बाय 2 के बराबर आपने लेना है। वी डिस्कस दैट इन दी एक्सरसाइज इन दी एग्जाम्पल नंबर 1 इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है दैट इज आल्सो डिस्कस्ड इन एग्जाम्पल नंबर 3, लेकिन इनमें से भी आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, जस्ट यू नीड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट दैट इज कोटेंजेंट। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ हमने जो रिजल्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ा था वो टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा था, तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की जगह पे कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट कोटेंजेंट, वहाँ पे सिर्फ ये टेंजेंट टेंजेंट था, तो ये रिजल्ट 1 के बराबर था। अगर यहाँ पे आप टेंजेंट टेंजेंट को इसको टेंजेंट से रिप्लेस कर लें, तो ये आपने एक स्टेप वहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 से जस्ट एक एक्स्ट्रा करना है कि जस्ट यू नीड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 10.1
only one question, that is question number 13 is remaining exercise 10.1, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू.